today, Mr. Prateek Srivastava. So thank you very much, sir, for taking out time to take this session on IPR. I would give a brief introduction of yours to all here present. So you are practicing patent attorney in India and a qualified electronics engineer and an advocate registered with the Bar Council of Madhya Pradesh. You have an extensive intellectual property experience and specialize in counseling on protection and management of intellectual property assets. You have represented clients from sectors like information and technology, electronics, fast-moving consumer goods, and others. On the patent side, you are actively involved in drafting of patent applications, patent filing, and patent prosecution services in the areas related to electronics, mechanical, and software. You have an extensive experience in prosecuting patent applications and on the trademark side. And you are actively involved in assisting clients in filing and prosecution of trademark applications. So thank you very much, sir. And our topic for today is patenting process in India and IP management for colleges and universities. So, and even before I give the controls to you, I also want to mention that we are having a business incubation center in ITM, and which is quite active, and a lot of students come up with their innovative ideas. So as there are many kinds of innovation that keep happening, and you know, there are categories of innovation like incremental innovation, architectural innovation, disruptive innovation, radical innovation. So depending upon you know, the student or faculty or any other staff have innovative ideas, either they are incremental or they are disruptive. Disruptive innovation is mostly the case with the students, wherein they come up with new technologies and products created to serve existing market. So the need of today is that the time for a startup to you know, to take less time from that particular startup stage to becoming an enterprise, which is typically right now is like 1500 days of time on an average, and it is like more than 5 years it takes. So when you want to reduce this time, IPR plays a very crucial role because they are able to raise funds, and this is one aspect of IPR that I actually, being into incubation, I learned about it and I know it. But then there are so many aspects of IPR, and in so many ways the IPR can be done. So Prateek sir, I would like you to enlighten us on IPR today, about its processes and typically for colleges and universities. So thank you, sir, and I'm giving it to you. First of all, thank you for giving me this kind opportunity to speak on this very interesting topic of patenting process and the IP management for colleges and universities. So I will be sharing my PPT. So can you see my screen? Yes, sir, we can. Okay, so thank you. So first of all, before understanding the concepts of patenting process and the IP management, we must first understand the form of IP. So there are two types of properties. First is the tangible property, and second one is intangible property. So the tangible property is the property जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप फील कर सकते हो, और in short it has some physical existence. For example, आपका फोन हो गया, आपकी रियल एस्टेट अपार्टमेंट हो गया, जिस घर में आप रहते हो, जो लैंड आप ओन करते हो, so this comes under the form of tangible property. So another form of property is the intangible property, जिसकी कोई physical existence नहीं है, but it has some value, right? It represents something, और जिसको आप छू नहीं सकते हो. So for instance, intellectual property rights, securities, bonds, computer softwares, brand names, franchise, etc., etc. This all comes under the
category of intangible property. So here comes the concept of intellectual property rights. So intellectual property rights are the rights given to persons over the creation of their mind for a limited period of time. So this limited period of time is very important, which we need to understand, right? So in India, there are normally uh, 7 types of IPR. First is trademarks, patents, copyrights, geographical indications, industrial designs, plant varieties, semiconductors, etc. So these are protected in India. We have a separate law for these IPs, but ट्रेड सीक्रेट यूटिलिटी मॉडल्स ये भी एक आईपी में आते हैं, बट इंडिया में इनके लिए कोई सेपरेट लॉ नहीं है. तो ट्रेड सीक्रेट नॉर्मली आप देखते हैं कि कोका कोला का जो फ्लेवर है, जो उसका मिक्सचर है, वो अभी तक किसी को नहीं आइडिया है कि वो कहाँ से आया, कैसे आया, बट उसका टेस्ट आज से 100 साल पहले भी वही था और आज भी वही है. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड सीक्रेट. इंडिया में अभी कोई ऐसा लॉ नहीं है, तो अभी जो प्रोटेक्शन मिल रही है ट्रेड सीक्रेट में वो कॉमन लॉ के थ्रू मतलब मिल रही है. यूटिलिटी मॉडल्स एक तरीके से लेस इन्वेंटिव स्टेप वाले इन्वेंशंस कह सकते हैं कि जिसके अंदर कोई पेटेंटिंग टाइप रिक्वायरमेंट्स वो फुलफिल नहीं करता है, बट उसको आपको अगर प्रोटेक्ट करना है तो आप उसको यूटिलिटी मॉडल्स के थ्रू कर सकते हैं. तो अभी इंडिया में इसका कोई लॉ नहीं है, बट इन कंट्रीज सच एज कोरिया, जापान, यूएस यूटिलिटी मॉडल्स का भी लॉ है. फॉर इंस्टेंस वो छोटे छोटे जो उनके प्रोडक्ट्स बनते हैं, प्रोसेस बनते हैं, वो उनको रजिस्टर करवाते हैं, देन दे कमर्शलाइज इट. सो 7 टाइप की कैटेगरीज जो प्रोटेक्ट होती है इंडिया में वो ये है, और जो प्रोटेक्ट नहीं होती है वो दिस टू. So since our objective is to understand the patenting process, we will be focusing on the patenting aspect only. So going by the definition, a patent is a right granted to an invention for a limited period of time. अब मैंने कुछ वर्ड्स बोल्ड किए हुए हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि वो कैसे कैसे क्या होते हैं. तो फर्स्ट इज द इन्वेंशन विच आई हैव कैटेगराइज्ड, व्हिच मींस इन्वेंशन क्या होती है, अ प्रोडक्ट और अ प्रोसेस. अगर कोई इन्वेंशन आपका प्रोडक्ट है या प्रोसेस है तो वो पेटेंट के क्राइटेरिया में फॉल करते हैं. सेकंड क्वेश्चन आता है कि राइट क्या मिलता है. ठीक है, मेरा इन्वेंशन है, मुझे उस इन्वेंशन को क्या राइट मिलेगा पेटेंट के थ्रू. तो राइट टू यूज द इन्वेंशन एंड राइट टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम यूजिंग माय इन्वेंशन, द अनऑथराइज्ड. तो दिस इज द, ये हमको मिलता है राइट उसमें. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि राइट ग्रांट कौन करता है. तो नॉर्मली द राइट इज ग्रांटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, particularly the Indian Patent Office, और इवन मोर पर्टिकुलरली द कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स. जो हमारा पेटेंट सर्टिफिकेट आता है कंट्रोलर से साइन करके आता है. सो द मेन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि वो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम क्या है, व्हाट इज द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. तो इंडिया में लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम पेटेंट्स का 20 इयर्स है, व्हिच इज नॉट एक्सटेंडेबल. इन एनी केस इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड. सो दिस इज अबाउट द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ पेटेंट्स. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन कम कि मुझे पेटेंट फाइल करना है तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है. So the invention shall be new, inventive and patentable as per the provisions of the Indian Patent Act. So these are the most important thing which you need to understand right now. So the question comes, what is novelty, inventive step and non-patentability criteria. Novelty को अगर हम simple words में देखें तो उसका मतलब होता है न्यू. हमारी इन्वेंशन न्यू होनी चाहिए, राइट. उसका कोई प्रायर एंटिसिपेशन नहीं होना चाहिए. तो जस्ट टू अंडरस्टैंड हम उसकी डेफिनेशन में जाएंगे, दैट द इन्वेंशन शैल नॉट हैव बीन एंटिसिपेटेड एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड बिफोर फाइलिंग द डेट ऑफ द एप्लीकेशन इन इंडिया, नॉट इन इंडिया, एनीवेयर. तो नॉवेल्टी का मतलब होता है एब्सोल्यूट नॉवेल्टी. अगर आपके फीचर्स किसी एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी हैं तो आपकी इन्वेंशन नॉवल नहीं है, राइट. सेकेंड, अगर आपकी इन्वेंशन नॉवल है, द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स ऑफ द इन्वेंटिव स्टेप. सिंपल शब्दों में समझे तो इट मींस ऑब्वियसनेस. आपकी इन्वेंशन ऑब्वियस नहीं होनी चाहिए. ऑब्वियस किसके लिए, टू अ पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट. अब स्किल्ड इन द आर्ट का मतलब क्या होता है कि फॉर इंस्टेंस मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ मैं, तो मेरे भी कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं किसी और इंस्टीट्यूट के ना प्रोफेसर हैं, या मेरे स्टूडेंट्स हैं. उनकी जब मैं उस इन्वेंशन पे काम कर रहा हूँ, जब मैंने उसके लिए पेटेंट अप्लाई किया है, तो उन लोगों के लिए मीन्स जो स्किल्ड इन द आर्ट हैं उनके लिए वो ऑब्वियस नहीं होना चाहिए कि उनने 2-3
डॉक्यूमेंट का वो किया, उनका कुछ भी कंक्लूजन निकाल के उस ऑब्जेक्टिव पे अगर आ रहे हैं, दैट मीन्स आपकी इन्वेंशन ऑब्वियस नहीं है, ऑब्वियस है, दैट मीन्स योर द इन्वेंशन लैक्स इन्वेंटिव स्टेप। अब इसको ओवरकम करने के लिए 3-4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट, अगर हमने ये प्रूव कर दिया दैट हमारी इन्वेंशन में इकोनॉमिक एडवांटेज है। सेकेंड, हमने ये बोल दिया कि हमारी इन्वेंशन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, तो हम उसका पेटेंट मिल सकता है। सेकेंड, थर्ड, हमने प्रूव कर दिया कि हमारी इन्वेंशन ऑब्वियस है ही नहीं फॉर एनीवन स्किल्ड इन द आर्ट। सो इकोनॉमिक एडवांटेज का मतलब ये होता है कि मैंने ये प्रूव कर दिया कि पहले एक प्रोसेस को करने में, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लगाने में मैंने रिवर्स इंजीनियर करके पहले 1 करोड़ रुपए का खर्चा आता था, मैंने उसमें रिवर्स इंजीनियरिंग यूज करके आई रिड्यूस द कॉस्ट टू 50 lakhs। दैट मीन्स इट हैज सम इकोनॉमिक एडवांटेज। दैट मीन्स ये ऑब्वियस बात नहीं है, जो काम आप पहले 1 करोड़ में कर रहे थे वो 50 lakhs में कर रहे हो। दैट मीन्स माई इन्वेंशन हैज सम सॉर्ट ऑफ इन्वेंटिव नॉन ऑब्वियसनेस, तो मैं उसको ओवरकम कर सकता हूँ। सेकेंड, प्रॉब्लम सॉल्यूशन अप्रोच। इंडिया और यूरोप में एक ही टाइप की अप्रोच होती है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन अप्रोच। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि इस पर्टिकुलर प्रायर आर्ट में ये प्रॉब्लम थी और मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ और मेरा जो सॉल्यूशन है विच इज मोर टेक्निकली एडवांस, तो मैं उस चीज को ओवरकम कर सकता हूँ। तीसरा, अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि मेरी इन्वेंशन ऑब्वियस है ही नहीं, चाहे आप कितने भी स्किल इंडिया लोग ले आइए, मेरी इन्वेंशन ऑब्वियस नहीं है, तो हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। उसको ओवरकम करने की ये प्रोसेस होती है, आपको क्लेम्स अमेंड करने होते हैं, स्पेसिफिकेशन अमेंड करनी होती है, काफी लेंथी प्रोसेस होता है। So the third most important requirement is the non-patentability criteria. Section 3 of the Indian Patent Act specifically deals with the provisions of non-patentable invention. तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं, अगर आपकी इन्वेंशन इन कैटेगरीज में फॉल करती है तो आपको पेटेंट मिलेगा ही नहीं। फॉर इंस्टेंस, इफ यू सेड for instance, if your invention is frivolous or contrary to well established natural laws, for instance आप ये कह रहे हैं कि मैंने एक ऐसी मशीन बनाई है जिसमें विदाउट डूइंग एनी इनपुट कोई आउटपुट आ रहा है, which is technically not possible, right? जब तक आप इनपुट नहीं दोगे तो आउटपुट कैसे आएगा? अगर आप वो क्लेम करते हो तो वो इन्वेंशन उस कैटेगरी में फॉल करेगी और पेटेंट ऑफिस बोल देगा कि आपको उसका पेटेंट नहीं मिल सकता है। कोई ऐसी इन्वेंशन जो मोरालिटी का अगेंस्ट हो, फॉर इंस्टेंस आपने बनाया है मेथड ऑफ गैम्बलिंग, ऐसा कोई गेम बनाया है मेथड ऑफ गैम्बलिंग, तो वो भी इंडिया में अलाउड नहीं। थर्ड, आप कहते हैं कि मैंने एक साइंटिफिक प्रिंसिपल की वो करी, डिस्कवरी करी है, या फिर मैंने कोई एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी बनाई है, तो वो भी पेटेंटेबल नहीं है इंडियन पेटेंट। एवरग्रीनिंग अलाउड नहीं है। फॉर इंस्टेंस फार्मास्यूटिकल केसेस में अगर कोई आपने अब क्या बोलते मेडिसिन करी है, आपने इन्वेंट की है, अनलेस कोई वो एफिकेसी नहीं दिखाती है तो वो पेटेंटेबल नहीं है। एफिकेसी एज कंपेयर टू द प्रायर आर्ट। अगर आपने कोई ऐसी चीज बोली है कि आपने 3-4 चीजों को जो कि इंडिपेंडेंटली काम कर रही है उनको अरेंज करके कोई चीज बनाई है, अनलेस वो टेक्निकल कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाता है तो वो पेटेंटेबल नहीं है। मेथड ऑफ एग्रीकल्चर इज नॉट पैटेंटेबल इन इंडिया। ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स इज नॉट पैटेंटेबल इन इंडिया। प्लांट्स एंड एनिमल्स पैटेंटेबल नहीं है। अ मैथमेटिकल बिजनेस मेथड और अ कंप्यूटर प्रोग्राम पर से इज नॉट पैटेंटेबल इन इंडिया। कंप्यूटर प्रोग्राम के केसेस में ऐसा होता है कि अगर कंप्यूटर प्रोग्राम, अगर आप किसी हार्डवेयर एलिमेंट की क्लेम करते हो या आप कोई टेक्निकल कंट्रीब्यूशन शो करते हो तो आप उसको पेटेंट करवा सकते हो। अदरवाइज पर से सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्राम पर से है तो वो पेटेंटेबल नहीं है। इट इज प्रोटेक्टेबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉपीराइट एक्ट। इफ यू हैव सम सॉर्ट ऑफ कोडिंग्स व्हिच यू वांट टू प्रोटेक्ट अंडर द आईपी लॉ, दैट द कॉपीराइट लॉ इज द बेस्ट फॉर यू। कोई आपने आर्टिस्टिक वर्क बनाया है, जैसे कोई पेंटिंग बनाई है, कोई स्क्रिप्ट लिखी है, वो इंडियन पेटेंट एक्ट के अकॉर्डिंग पेटेंटेबल नहीं है, बट कॉपीराइट में आपको प्रोटेक्शन मिल सकती है। अब आपने कोई ऐसी चीज बनाई है जो किसी मेंटल एक्ट को वो कर रही है, परफॉर्म कर रही है। अब फॉर इंस्टेंस अ मेथड ऑफ डूइंग अ योगा, राइट? So this is a mental act, so this is not patentable under the Indian Patents Act. किसी इंफॉर्मेशन को आप वो करते प्रेजेंट कर रहे हो तो वो भी पैटेंटेबल नहीं है। टॉपोग्राफी ऑफ आईसीज, इसके लिए एक सेमीकंडक्टर्स एक्ट है, उसमें वो
उसमें आपके वो मत होगी, प्रोटेक्शन होगी। ट्रेडिशनल नॉलेज इन एनी केस इट इज नॉट पेटेंटेबल। हल्दी जो भी इंडिजिनियस आपके चीजें हैं वो पेटेंटेबल नहीं है। So what I've done is I have basically divided this patenting process into 3 categories. First is the pre-filing stage, second is the filing stage, and third is the post-filing stage. So the pre-filing stage में the first question comes that who may apply for a patent, right? So that most आप जब भी किसी से बात करोगे वो पहले यही सवाल पूछेगा कि आप पेटेंट कौन फाइल कर सकता है। So any person claiming to be a true and first inventor, अगर कोई inventor है and he is the true and first inventor, then he can apply for a patent. अब कोई किसी एंटिटी ने, फॉर इंस्टेंस किसी यूनिवर्सिटी ने उस ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर से किसी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू या असाइनमेंट के थ्रू एग्रीमेंट कर लिया है दैट द आईपी बिलोंग्स टू मी, तो जो उसका असाइनी है, फॉर इंस्टेंस द एप्लीकेंट, यानी जो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर को जिन एप्लीकेंट को राइट्स ट्रांसफर किए हैं वो अप्लाई कर सकता है उसके लिए, पेटेंट के लिए। फॉर इंस्टेंस पेटेंट फाइल करते करते या कोई ने रिसर्च करते करते अनफॉर्चुनेटली किसी की वो डेथ हो गई, तो उस केस में उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो फाइल कर सकते हैं। So the next and the most important thing is before filing the patent application, we must do a basic research. आपको मालूम होना चाहिए that before filing हमारी क्या क्या प्रायर आर्ट्स हैं। प्रायर आर्ट्स का मतलब ये होता है कि हमारे अभी एग्जिस्टिंग मार्केट में क्या क्या है, उनकी अभी हमारे क्या क्या चीजें हैं, कहाँ कहाँ हम पहुंच चुके हैं और हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। सो द इन्वेंटर्स और द पर्सन अप्लाइंग फॉर अ पेटेंट must do a basic research before starting to draft the patent application or filing the said patent application. So basically it gives a basic understanding of the existing technologies or the prior arts available, so that you can identify as to how your invention is novel or inventive over the prior art. तो बेसिक रिसर्च करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है बिफोर थिंकिंग और बिफोर ड्राफ्टिंग द पेटेंट एप्लीकेशन। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि मेरे को सर्च करना है तो मैं कहाँ करूँगा, राइट? आप सिंपल गूगल सर्च भी कर सकते हैं और आईपी इंडिया की वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आप उस पर जाके कर सकते हैं। द यूएसपीटीओ, द यूएस पेटेंट ऑफिस की वेबसाइट है, आप वहां जाके भी सर्च कर सकते हैं। एक यूरोपियन यूनियन की जो पेटेंट की वेबसाइट है, ई स्पेस नेट बोलते हैं उसको, वहां जाके भी कर सकते हैं। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वाइपो, वहां पे भी जाके भी कर सकते हैं। गूगल पेटेंट्स गूगल का ही खुद का इनका सॉफ्टवेयर डेटाबेस है, वहां जाके अगर आप अपनी सर्च स्ट्रिंग्स डालेंगे तो आपको नंबर ऑफ पेटेंट्स एंड नंबर ऑफ एनपीएल्स मिल जाएंगे, जहां जाके आप सर्च कर सकते हैं। और अगर आप ये चीजें नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यू कैन जस्ट गो टू माय वेबसाइट एंड वेयर इन यू विल get the hyperlink of all these websites. So the next important step is to draft a patent application. So the question comes, क्या मैं खुद draft करना चाहिए? So it is not advisable though. First, yes, you can draft your patent application on your own, right? So to draft a patent application, one must engage a patent attorney so that he or she can draft your patent application in line with the Indian patent practice. और अगर आप चाहते हैं कि मेरे को रजिस्टर्ड पेटेंट एजेंट की लिस्ट चाहिए, तो आप आईपी इंडिया की वेबसाइट पर जाके आप उसमें बाय नेम, बाय सिटी, बाय एजेंट नंबर आप सर्च कर सकते हैं, सो दैट दे विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ पेटेंट एजेंट। एज आई mentioned right now, that can a patent application be drafted on my own? Yes, answer is yes. Anyone can draft and file the patent application in India. However, there are some certain procedures, standards which needs to be followed while drafting the patent application. अब सवाल आता है कि वो स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स क्या हैं? जब हम पेटेंट ड्राफ्ट करते हैं, लिखते हैं, तो क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है? तो ये तो बहुत ही, अगर आप इंडियन पेटेंट मैनुअल जो गवर्नमेंट हर 3 साल या 4 साल में करती है पब्लिश, उसमें अगर जाएंगे तो ये चीज़ें उसमें मेंशन होती है ऑलरेडी। द स्पेसिफिकेशन मस्ट कंटेन द इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल टाइटल। आप जब भी कोई पेटेंट ड्राफ्ट करने के लिए जाते हैं तो टाइटल पहले मालूम होना चाहिए कि मेरा इन्वेंशन का टाइटल क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि अ मेथड ऑफ डूइंग समथिंग, तो ये मेरा हो गया, टाइटल हो गया। अब मैं इसी
फील्ड में आगे चलूंगा जब मुझे अपना फील्ड मतलब बताना है कि मेरे इन्वेंशन का फील्ड क्या है, दैट माय इन्वेंशन रिलेट्स टू अ मेथड ऑफ डूइंग समथिंग, प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग और अ डिवाइस फॉर दिस थिंग। तो इस तरीके से आपको फील्ड ऑफ इन्वेंशन मेंशन करनी होती है। पैराट मेंशन करना होता है। फॉर इंस्टेंस आपने अगर ऑलरेडी बेसिक रिसर्च कर ली है तो ये जो बेसिक पैराट वाला सेक्शन है ये ऑलरेडी आपका कंप्लीट हो गया। आप मेंशन कर सकते हैं कि ये एग्जिस्टिंग अभी मार्केट में है, ये पेटेंट्स फाइल हुए हैं, ये प्रॉब्लम इनमें है और मेरी जो इन्वेंशन है वो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। फिर उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट बताना होता है, दैट दी व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर इन्वेंशन, राइट, दैट that what is the object of about what is the objective of your invention and how it is being achieved. Then the most important is the summary part. अगर आप summary अगर आप mention कर देते हैं अच्छे से कर देते लिख देते हैं, आपका 70% काम यहीं पर ही हो गया। आप वो फिर कंट्रोलर इसके आगे फिर करेगा ही नहीं चेक। अगर आपने सारी चीजें समरी में ही कर दी मेंशन आपने तो कंट्रोलर आगे जाएगा नहीं, कहेगा हाँ मेरा काम यहीं पर ही हो गया। फिर अगर कुछ ना ड्राइंग्स हैं तो आपको ड्राइंग्स मेंशन करनी होती है, और वो ड्राइंग्स के क्या क्या एलिमेंट्स हैं जो इंटरलिंक्ड हैं वो कैसे काम कर रहे हैं उनके बारे में बताना होता है। बेस्ट मेथड बताना होता है। ये एक पेटेंट्स एक्ट की रिक्वायरमेंट है, दैट द एक्ट स्पेसिफिकली रिक्वायर्स दैट द कंपनी स्पेसिफिकेशन मस्ट basically show the best method of performing the invention known to the applicant, including the one which he may have acquired during the period of provisional protection prior to the date of filing the complete specification. And the most important thing is the claim. ये इसी में ही आपकी स्किल मालूम होती है कि आप एग्जैक्टली क्या क्लेम करना चाहते हो। क्लेम इज द ओनली थिंग, क्लेम आपकी इन्वेंशन की बाउंड्री को डिफाइन करता है कि मेरी इन्वेंशन एक्चुअली में ये है और मैं ये क्लेम करना चाहता हूँ। तो जब कंट्रोलर आपकी जो एग्जामिनर और जो कंट्रोलर हैं वो जब आपके एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे सबसे पहले वो क्लेम्स देखेंगे और क्लेम्स के संग में वो समरी देखते हैं और फिर समरी के संग संग में वो देखते हैं कि एग्जैक्टली आप क्या क्लेम करना चाहते हैं। तो इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद आती है एब्स्ट्रैक्ट की बात आती है। जब आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं, आपने स्पेसिफिकेशन बना लिया है, आपने समरी बना लिया, क्लेम्स बना लिए, तो आपको एब्स्ट्रैक्ट बनाना होता है। जब कोई पेटेंट सर्च कर रहा होता है, फॉर इंस्टेंस जब मेरे को किसी का पैराट सर्च करना होता है तो मैं पहले एब्स्ट्रैक्ट देखता हूँ, क्योंकि जब आपकी एप्लीकेशन इसकी ना जर्नल में आती है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट ही करते हैं शो। मेरा अगर एब्स्ट्रैक्ट में ही इन्वेंशन कंप्लीट है तो मेरे को वो अंदर डॉक्यूमेंट खोलने की जरूरत नहीं। तो एब्स्ट्रैक्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच नीड्स टू बी which needs to be accompanied with the company specification, and it must have all the technical information of your invention but within 150 words। ये आपको 150 वर्ड्स में ही करना होता है। अगर आप इससे कहीं ज्यादा करते हैं, ऑल्दो इट कैन बी इट इट इज अलाउड बट एडवाइजेबल है 150 वर्ड्स में करना। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेरी अब बेसिक रिसर्च हो गया, मैंने ड्राफ्ट कर लिया, अब क्वेश्चन कम्स कि मेरे फॉर्म्स क्या क्या लगेंगे जब मुझे एप्लीकेशन फाइल करनी है। तो पहला तो फॉर्म 1 है। फॉर इंस्टेंस जब आप किसी आरटीओ की एप्लीकेशन के लिए जाते हो तो एक सर्टेन फॉर्म्स होती हैं जो गवर्नमेंट में, आप इंडियन गवर्नमेंट की किसी भी वो काम करेंगे तो एक पर्टिकुलर फॉर्म्स होते हैं। सेम इज विद द इंडियन पेटेंट ऑफिस एंड सेम इज विद द ट्रेडमार्क एंड सेम इज विद द अदर आईपी लॉज। तो एक फॉर्म 1 है विच इज द बेसिक एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ अ पेटेंट। सेकेंड इज जो फॉर्म 2 है, अगर आपकी प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन है तो फॉर्म 2 लगेगा और कंप्लीट है तो फॉर्म 2 लगेगा। इसमें फॉर्म 5 जाता है, फॉर्म 3 जाता है और फॉर्म 26 जाता है इन केस अगर आप किसी अटॉर्नी को एंगेज करते हैं, किसी एजेंट को एंगेज करते हैं तो उसकी स्टाम्प ड्यूटी के संग में ये फॉर्म 26 जाता है। These are the government fee for filing the patent application। अगर आप नेचुरल आप सिर्फ इन्वेंटर हैं, आप स्टार्टअप हैं और आप स्मॉल एंटिटी हैं और अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी का भी आया है तो आपकी गवर्नमेंट फी 1600 रुपीज रहेगी। एंड दिस इज विद इन द 30 पेजेस एंड 10 क्लेम्स, तो आपकी फीस रहेगी 1600। और अगर आप लार्ज एंटिटी में फॉल करते हैं तो आपकी गवर्नमेंट फी 8000 रुपये रहेगी।
फिर फाइलिंग के बाद रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल करना होता है, उसकी गवर्नमेंट फी फॉर नेचुरल पर्सन, स्टार्टअप एंड स्मॉल एंटिटीज एंड यूनिवर्सिटी वुड बी 4,000 rupees, and for large entity it would be 20,000 rupees. So these are the government fee. अब जब हम एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है, आपकी एप्लीकेशन 18 महीने के एक्सपायरी के बाद फिर जर्नल में होती पब्लिश होती है, विच मीन आपके पास जिस दिन आपकी एप्लीकेशन जर्नल में आ गई, दैट मीन्स यू हैव ऑल द राइट्स ऑफ अ ग्रांटेड पेटेंट। दैट मीन्स अगर आपकी एप्लीकेशन आज किसी उसमें ये पब्लिक डोमेन में आई है तो मेरे पास आज की तारीख से वो सारे राइट हैं जो ग्रांटेड इन्वेंशन के होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आई कैन स्टॉप यू फ्रॉम यूजिंग माय इन्वेंशन, आई कैन कमर्शियलाइज इट, आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट, बट ओनली द थिंग इज आई कैन नॉट इंस्टीट्यूट एनी इन्फ्रिंजमेंट प्रोसीडिंग्स। मैं किसी के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकता, अदरवाइज मेरे पास सारे राइट्स होते हैं। तो तब अब जब इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है तो फिर 18 मंथ का जो टाइम है क्या वो एक्सपेडाइट हो सकता है? ऑफ कोर्स यस, इट कैन बी एक्सपेडाइट। अगर आप चाहते हो कि मेरी प्रोसेस एक्सपेडाइट हो तो एक सिंपल सा फॉर्म होता है, फॉर्म 9, विच इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल अलोंग विद पेमेंट ऑफ एन ऑफिशियल फी। और अगर आपने इस फॉर्म को फाइल कर देते हैं तो आपकी एप्लीकेशन 15 डेज, 20 डेज, मंथ और 2 में आपकी एप्लीकेशन और उसमें आपकी आ जाएगी, जर्नल में आ जाएगी, सो दैट यू कैन use your invention in a more succinct and a more in a more, basically you can commercialize it. So the next is the examination part. जब आपकी एप्लीकेशन ड्राफ्ट हो गई, फाइल हो गई, अब आपको एग्जामिनेशन की स्टेज होती है। फॉर इंस्टेंस ट्रेडमार्क एंड कब डिजाइन में ये होता है कि आप एप्लीकेशन फाइल करते हो तो ऑटोमेटिकली क्वेरी जनरेट होकर आ जाती है। पेटेंट्स में ऐसा नहीं है, पेटेंट्स में आपको विद इन अ पीरियड ऑफ 48 मंथ्स आपको रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल करना होता है। अगर आप ये 4 साल के अंदर फाइल नहीं करते हो तो आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली अबेंडन हो जाएगी। फॉर इंस्टेंस मैंने अगर आज एप्लीकेशन फाइल की है सितंबर 3, 2021 को, तो मेरी जो रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन की जो डेडलाइन रहेगी वो सितंबर 3, 2025 को रहेगी। इसकी गवर्नमेंट फी होती है। गवर्नमेंट फी फॉर अगर आप नेचुरल पर्सन हैं, यूनिवर्सिटी हैं, आप स्टार्टअप है, स्मॉल एंटिटी है तो 4,000 रुपये है। अगर आप लार्ज एंटिटी हैं तो 20,000 रुपये इसकी गवर्नमेंट फी रहेगी। नॉर्मली जब आप रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल करते हैं तो इट टेक्स 1 year to 2 years to issue an examination report in normal circumstances, but it can be expedited. आप इस प्रोसेस को एक्सपेडाइट कर सकते हैं, इस एग्जामिनेशन को एक्सपेडाइट कर सकते हैं बाय पेइंग an extra amount of fee provided if you fall under the category of the expedited examination. For instance, अगर आप यूनिवर्सिटी हैं और आप अगर फीमेल इन्वेंटर हैं और आप स्मॉल एंटिटी हैं, नेचुरल पर्सन हैं और या किसी आप इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं, तो उस केसेस में आप एक्सपेडाइट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। जब आप रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल कर देते हैं तो एक एग्जामिनेशन रिपोर्ट आता है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द पेटेंट ऑफिस। एक एग्जामिनेशन रिपोर्ट आता है जिसमें कुछ ऑब्जेक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल novelty, inventive step, non-patentability, scope, and other related objections which may be technical or non-technical. जैसा कि मैंने बताया था कि एक पेटेंट का क्राइटेरिया होता है कि न्यू होनी चाहिए, इन्वेंटिव होनी चाहिए, तो वो पेटेंट ऑफिस वो सारी चेक करके क्वेरी जनरेट करके दे देता है, जिसको हमको विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months वी आर रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिस्पॉन्स टू दैट एग्जामिनेशन रिपोर्ट। अगर आप उसका रिस्पॉन्स फाइल नहीं करते हो तो आप उसको 3 महीने का एक्सटेंशन कर सकते हो। इन केस आप एक्सटेंशन नहीं ले पाते हो तो आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली अबेंडन हो जाएगी एंड इट इज नॉन अपीलेबल। जब आप रिस्पॉन्स फाइल कर देते हो तो द पेटेंट ऑफिस री एग्जामिन्स द पेटेंट एप्लीकेशन व्हिच यू हैव फाइल्ड vis-a-vis द रिस्पॉन्स व्हिच यू हैव सबमिटेड, एंड अगर वो सेटिस्फाई हो गया तो वो आपको सीधे एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज वो आपको देने और या फिर वो आपको हेयरिंग के लिए। नॉर्मली इन इंडिया हेयरिंग आर नाउ शेड्यूल्ड थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सो हेयरिंग के बाद भी अगर आपके एप्लीकेशन वो he is satisfied, he will accept the parent application, otherwise he will refuse on some valid grounds जो पेटेंट एक्ट के अंदर लिखे हुए हैं। तो जब सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई हो जाती हैं, सो द पेटेंट सर्टिफिकेट इज इशूड लाइक दिस। ब्लू सर्टिफिकेट आता है
the term of protection is 20 years in India, and उसकी जो annuity पे होती है वो तीसरे साल से पे होना शुरू होती है. So the question comes, what is the rights of a patent holder? The patent holder is provided with a right to manufacture, use, sell, and distribute the patented product or a process. Right? So these are the rights of a patent holder. अब हम just I was ये अगर आप IP इंडिया की वेबसाइट में अगर देखेंगे तो हर साल एक आप जर्नल होता है, पब्लिश होता है, विच स्टेट्स के किस किस स्टेट ने कितने पेटेंट एप्लीकेशंस फाइल किए हैं. So Maharashtra is on top, and we are on 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठवें नंबर से हम लास्ट पे हैं. तो हमने ऑलरेडी हर साल 194 पेटेंट एप्लीकेशंस ऑन एन एवरेज 200 पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करते हैं. और अगर हम एज कम्पेयर टू महाराष्ट्र का देखेंगे तो ये हमारा 4197 अकेला उनका है. तो इट इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, बट वी नीड टू focus it on, you know, on a more expedited manner, जिसको हम एटलीस्ट टॉप पे नहीं तो कम से कम टॉप 5 में एटलीस्ट पेटेंट फाइलिंग में आए. So and these are the universities which are the top patent filers in India. First is the IIT. Of course, it is a very obvious thing. And second is Chandigarh University. Third is Shulini University. Fourth is MET. Fifth is SRM. Sixth is Chandigarh group of colleges. Seventh is Jipna Bharat University, Indian Institute of Science, Galgotia, and LP. So there is no university from MP which is, you know, being on at least on top 10. So we need to work more on this, and we need to file n number of patent applications without thinking of the cost part, since the government has already reduced the government fee for filing the patent application for universities and for inventors as well. So we need to, instead of हम किसी अपने जर्नल में वो करने के अलावा आप उसको वो कर देते हैं, शब्द पब्लिश कर देते हैं, इंस्टेड वो करने से अच्छा है कि पेटेंट एप्लीकेशन करना है फाइल विदाउट थिंकिंग ऑफ द फैक्ट कि उसका क्या होगा आगे. राइट? तो अब इट्स अ प्रोसेस, वो हमको प्रोसेस फॉलो करनी है, बट वी शुड फाइल एन नंबर ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन. So this comes to an end, my end of the first part of my PPT. Second is the IP management and strategies. So IP management here it means the patent management and strategy. Since we all belong to the university which has its own business incubation center. So broadly speaking, IP management is a process of managing IP portfolio to basically derive the commercial value out of it. And it also helps in protecting companies' data and enhances compliance with global law side. So in India, IP refers to patents, trademark, copyright, geographical indications, plant varieties, and semiconductors. However, the focus of this PPT will be on the strategy of managing patents in an adequate manner. So what is the patent strategy? A patent strategy is a series of steps that everyone must take in order to secure inventions and basically derive the commercial value out of it. So what is the strategies which needs to be followed while filing the patent application and after filing the patent application? So basically filing करने से पहले की जो strategy है, which will be the identification. So it is very important to identify the technological areas that are worth investing in. अगर आपने यही आइडेंटिफाई नहीं किया कि आपको किस एरिया में काम करना है, that means आपकी कहीं ना कहीं रिसर्च में वो है, you are lacking on that side. So we must first identify the technological area. Second is the preventive analysis, जो कि हम सर्च की बात करते हैं. It is very important to have our research very strong so that हम एक मतलब आइडेंटिफाई कर सकें कि रिस्क क्या क्या रहेंगी और अपॉर्चुनिटीज क्या क्या रहेंगी. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब हमने प्रिवेंटिव एनालिसिस कर लिया है, थर्ड थिंग इज टू आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंट एंड नॉन इम्पोर्टेंट इन्वेंशन. मतलब द एप्लीकेंट जो है, ही मस्ट इवैल्यूएट एंड सेपरेट द इम्पोर्टेंट इन्वेंशन फ्रॉम द नॉन इम्पोर्टेंट वन.
and we must first identify that what are patent worthy and what is not. अगर पेटेंट वर्दी है तो भी पेटेंट फाइल करना है, पेटेंट वर्दी नहीं है तो भी पेटेंट फाइल करना है, बट फाइल करने के बाद की स्ट्रेटेजी चेंज हो जाएगी, वो मैं आपको बताता हूँ आगे कैसे क्या। फिर जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि व्हाट आर इम्पोर्टेंट एंड नॉन इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस, द थर्ड इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ jurisdiction. For instance, if I want to file my patent application in United States, तो उसके लिए अलग टाइप की वो रहेगी, स्ट्रेटेजी रहेगी. If I want to apply a patent in for instance a country like Hong Kong, और मतलब किसी भी कंट्री में अपार्ट फ्रॉम इंडिया, किसी भी कंट्री में आप एप्लीकेशन फाइल करते हो तो यू मस्ट इवेल्युएट कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या आपकी रिस्क इसमें रहेंगे. The first is the drafting of specifications, which is the most important thing. It plays an important role in getting a patent grant. अगर आपकी ड्राफ्टिंग सही नहीं है और आपकी अगर ड्राफ्टिंग में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो पेटेंट ऑफिस आपको पेटेंट ग्रांट नहीं करेगा, और ग्रांट नहीं करेगा तो आप जो चाहते हो, जो कमर्शियल वैल्यू आप उसकी करना चाहते हो, यू वांट टू टेक आउट द कमर्शियल वैल्यू, वो आप फिर वो पॉसिबल नहीं है. तो फाइलिंग स्ट्रेटजीज होती हैं कि एक आपने ये सब चीज आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या क्या एरियाज हैं, क्या क्या आपकी अपॉर्चुनिटीज हैं. द नेक्स्ट, जब आपकी सारी प्री फाइलिंग स्ट्रेटजीज कंप्लीट हो गई, यू मस्ट फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू फाइल अ पेटेंट एप्लीकेशन विद द इंडियन पेटेंट ऑफिस. फॉर अगर आप फाइल करने के बाद इफ यू आर प्लानिंग टू गो इंटरनेशनल, अगर आप एक या दो कंट्री में फाइल करना चाहते हो तो एक उसके लिए अलग रूट है, क्या बोलते हैं कन्वेंशन रूट है. आप सीधे एप्लीकेशन इंडिया में फाइल करें एंड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर आप किसी और कंट्री में कर दें, फाइल आप कर दें विदाउट लूजिंग द प्रायोरिटी डेट. बट आप चाहते हैं कि मुझे कम से कम 20 कंट्री में फाइल करना है, तो इंडिया में एप्लीकेशन फाइल करने के बाद एक साल में इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं 20 एप्लीकेशन इकट्ठी अलग अलग कंट्री में फाइल करूँ. तो उसके लिए एक वाइपो रूट बनाया गया है, पीसी2 रूट बनाया गया है 1970s में, जिसमें अगर आप सिंगल एप्लीकेशन इंडिया में फाइल करते हो और उसके विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर आप वाइप एप्लीकेशन फाइल करते हो, सो इट गिव्स अ पीरियड ऑफ 30 to 31 मंथ्स. आपको 30 से 31 महीने का समय मिलेगा विदाउट लूजिंग द प्रायोरिटी डेट उन पर्टिकुलर कंट्रीज में एंट्री करने का, फाइल मतलब करने का. तो इट इज अ वेरी, अगर आपकी एप्लीकेशन, आपको सिर्फ एप्लीकेशन एक दो कंट्रीज में करनी है तो ठीक है, आप सिंपल एप्लीकेशन कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं. बट इफ यू वांट टू गो इनटू द मल्टीपल कंट्रीज, देन पीसीटी इज एडवाइजेबल. हाँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द पब्लिकेशन स्ट्रेटेजी फॉर इंडियन एप्लीकेंट. नॉर्मली क्या होता है कि जब जैसे ही हम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में देखते हैं कि पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करने के बाद वो expedite process के लिए जाते हैं publication के लिए, which is obviously it is good that you want to show it on your CV etc, but it is a very risky thing as well. Normally अगर आपकी पेटेंटेड, आप जिसके लिए पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किया है एंड इफ यू आर नॉट श्योर कि मेरी इस इन्वेंशन में शायद नॉवेल्टी ना हो, इन्वेंटिव स्टेप ना हो, या किसी नॉन पेटेंटेबल क्राइटेरिया में फॉल करता हो, तो उस केस में हमको एक्सपेडाइट के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऑपोजिशन फाइल करने के लिए वो आपके पास जैसे ही आपकी एप्लीकेशन बहुत ही पब्लिश होती है, आपके लिए आपकी एप्लीकेशन अप्रूव भी हो सकती है. क्योंकि इसलिए जब आपकी एप्लीकेशन किसी भी उसमें जर्नल में आती है तो आपके जो राइट्स होते हैं वो ग्रांटेड, तो पेटेंट वाले राइट्स होते हैं. So it is very important to analyze before filing the expediting process of publication. So we must have a strategy कि अगर आप बिल्कुल श्योर हैं कि हाँ मेरी इन्वेंशन एक्चुअली में इट इज अ पेटेंट वर्दी, then you should go for expedited and you can do. But if you have some doubt that you want to wait for it, then you should not just rush for filing the expedited ये अपना प्रोसेस के लिए. You should wait for 18 months and then application, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी एप्लीकेशन होके पब्लिश होगी, सो दैट आप उसको 18 महीने, फिर 18 महीने के बाद आप उसको आगे कर सकते हैं, उसको शो कर सकते हैं. So the next
after the this strategy, we must also have a strategy for examination. Normally क्या होता है कि जब आप पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करते हो तो 4 साल के अंदर आपको फाइल करना होता है। कुछ लोग जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं उसी टाइम एग्जामिनेशन कर देते हैं, फाइल कर देते हैं। कुछ लोग दे वेट फॉर 40 मंथ्स 45 मंथ्स, फिर जब वो एंड में आने वाला होता है कि तो तब जाके वो एग्जामिनेशन करते हैं, फाइल करते हैं। So most of the applicants, those who are not sure of the novel or inventiveness of the invention, they generally try to कि हम इसको जितना लेट कर सकते हैं उतना फिर एग्जामिनेशन को वो करते हैं, लेट करते हैं। वो 48 मंथ का अगर उनका डेडलाइन है तो 47 मंथ में वो करते हैं। सो इससे क्या होता है, अगर आप श्योर नहीं हो तो जो अर्ली प्रोसिक्यूशन होता है उससे आप हो सकते हैं बच सका जा सकता है। फॉर इंस्टेंस मैंने अगर आज एप्लीकेशन फाइल करके आज एग्जामिनेशन कर दिया फाइल, तो मेरी अर्ली एग्जामिनेशन रिपोर्ट आएगा, और एग्जामिनेशन रिपोर्ट आएगी तो अर्ली हियरिंग भी आएगी, और हियरिंग भी आएगी तो एप्लीकेशन आपकी या तो एक्सेप्ट हो जाएगी या आपकी रिफ्यूज हो जाएगी। अगर मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि मेरी इन्वेंशन इज अ वेरी गुड इन्वेंशन एंड आई वांट एंड इट विल बी एक्सेप्टेड, देन इट्स फाइन। बट इफ यू आर नॉट श्योर कि मेरी जो पेटेंट मेरी जो इन्वेंशन है वो न्यू नहीं है, इन्वेंटिव नहीं है, तो मैं उसको जितना खींच सकता हूँ उसको खींचूंगा, सो दैट मेरी जो प्रोसेस है वो इतनी खींची जाएगी कि मैं 5 साल तक उसका कमर्शियल बेनिफिट निकाल के, और 5 साल बाद अगर वो मेरी एप्लीकेशन रिफ्यूज भी होती है, देन ऑल्सो मैंने उस एप्लीकेशन को अपने सीवी में भी यूज कर लिया है, एंड मैंने उसको हर तरीके से कमर्शियली बेनिफिट निकाल के, अब वो चाहे रिफ्यूज हो चाहे एक्सेप्ट हो, आई डोंट केयर। तो दिस शुड बी द बिफोर filing or after filing the application, we must have a strategy for this. So the next is the grant of patents, commercialization and licensing of patents. Patent gets granted as and when all the requirements of the patent office have been complied. तो जिन एप्लीकेंट्स के पास मल्टीपल इन्वेंशंस हैं, दे मस्ट फिगर इट आउट वेदर किस एप्लीकेशन में हमको एन्युटी पे करना है और किस एप्लीकेशन में पे नहीं करना है। उससे फायदा वो ये है, फॉर इंस्टेंस आप किसी इन्वेंशन का कमर्शियल बेनिफिट नहीं निकाल पा रहे हो, और या फिर उसको आप यूज नहीं कर पा रहे हो, लाइसेंस नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में यू शुड नॉट इन्वेस्ट योर valuable resources in this in the annuity. So you should basically think कि हमको अगर ठीक है हम उसको कमर्शियलाइज कर पा रहे हैं, then it's fine, then you should go with it, and if you are unable to commercialize, then you should not invest something। इसके लिए भी आप 1.5 साल तक तो खींच ही सकते हो। So after the grant of a patent, commercialization is very important. Patent can bring in investment to the company. When investing in a company, an investor would want to be assured that his investment would be protected and he would gain some returns for his investment, right? So it is important to have an IP valuation before commercialization of patent. मतलब आप पेटेंट कमर्शियलाइज करने के लिए जा रहे हो, उससे पहले यू मस्ट नो कि मेरे पेटेंट की वैल्यू क्या है। मैं किसी मार्केट में अप्रोच कर रहा हूँ, मैं किसी एंजल इन्वेस्टर के पास जा रहा हूँ, तो आई मस्ट नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माय इन्वेंशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माय। सो द वैल्यूएशन कैन आल्सो बी एन एसेंशियल। जब आप किसी अपनी कंपनी को मर्ज करते हो, देन आल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए कि हमारे पास एसेट्स कितने हैं, इंटेंजिबल एसेट्स कितने हैं हमारे पास। फॉर इंस्टेंस मेरे पे 1 करोड़ का अगर कोई इन्वेंशन है, तो वो एग्रीमेंट में आता है कि मेरे पास ये इन्वेंशन है। licensing of patents, although it is not a mandatory thing, मतलब it is not ऐसा मतलब नहीं है कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है that I should basically मैं अपनी इन्वेंशन में किसी को दूं लाइसेंसिंग, बट इट कैन बी अ ग्राउंड फॉर कंपल्सरी लाइसेंसिंग। ज्यादातर फार्मास्यूटिकल केसेस में ये होता है कि अगर आप किसी इन्वेंशन को लाइसेंस नहीं करते हो और उस इन्वेंशन से कुछ ऐसी चीज ठीक हो रही है जो किसी और इन्वेंशन से नहीं हो रही है, किसी और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से नहीं हो रही है, देन इन दैट केस गवर्नमेंट भी
कंपल्सरी लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई कर सकती है, एंड सम इंटरेस्टेड पर्सन में आल्सो अप्लाई फॉर द कंपल्सरी लाइसेंस. So the conclusion is this, that a patent strategy when applied in a right way can make business grow in a more better way. To achieve this, a patent filing strategy and a management strategy should be customized according to the needs of the company. If properly executed, these strategies could lead companies to get success, giving it a definitive edge over its competitors. So the last question which I would like to basically go into this. Generally, जब मतलब मैं मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं, the question comes to me is that who owns the IP? मैं किसी इंस्टीट्यूट में काम कर रहा हूँ, तो वो उस केस में आईपी कौन ओन करता है? क्या कॉलेज ओन करता है या फिर कब से रिसर्च जो वो रिसर्चर्स होते हैं वो ओन करते हैं? तो अंडर द इंडियन आईपी लॉस इट्स अ वेरी ग्रे एरिया. देयर इज नो सच थिंग मेंशन अंडर द इंडियन पेटेंट्स एक्ट और द ट्रेडमार्क एक्ट. ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि मेरे जो रिसर्चर्स ने बनाया है वो आईपी कौन उसको वो करेगा, उसको ओन करेगा. बट नॉर्मली आजकल क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट जब हम किसी को देते हैं, किसी को ऑफर लेटर भेजते हैं, तो उसमें आईटी का क्लॉज आना स्टार्ट हो गया है. अगर कोई आईटी का क्लॉज उसमें है और उसमें ये मेंशन है दैट द आईपी विल बी सोनली ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, सिंस द एम्प्लॉय विल बी यूजिंग द एम्प्लॉयर्स बेसिकली ये अपना जो उनके चीजें होंगी, जो उनके इक्विपमेंट्स होंगे वो यूज करेंगे, then in that case the IP will be owned by the university. So this is the question which I would like to deal with. और मैं हर जब भी कॉलेज में आता हूँ ये क्वेश्चन मैं हमेशा करता हूँ, बिकॉज ये क्वेश्चन हमेशा मेरे पास आता है. So this is all about my PPT about the patenting process and the management and IP strategies. So it's all about my firm, that we are a full service IP law firm based in Central India, and we deals in all sort of IPs, patents, trademark, designs, copyright, etc. And this is my card, this is my number. You can in fact basically email me. आप phone भी कर सकते हैं. Thank you, sir. So thank you very much, Prateek sir. That was wonderful insight. बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी आपके प्रेजेंटेशन में. एक जो लास्ट में आपने जो क्वेश्चन रेस किया था, जिसमें इफ वी आर वर्किंग विद द कॉलेज और यूनिवर्सिटी एंड उसमें हम जो रिसर्च करते हैं, सो हु विल शेयर द आईपी. सो आई थिंक ये बड़ा एक्सटेंसिवली अभी कवर हो रहा है ये पॉइंट, जो नेशनल इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी है उसमें. सो दे हैव सेपरेटली काइंड ऑफ गाइडलाइन दी हुई है उसमें, when can an IP be shared, even when. तो वो बहुत डिटेल में, और आई थिंक हमने एक अवेयरनेस सेशन भी किया है स्टार्टअप पॉलिसी के ऊपर, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च कर दिया. तो यस, नाउ एक्चुअली इट इज द टाइम जहाँ बहुत एम्फोसिस है आईपीस के लिए, बिकॉज हम काफी पिछड़ रहे हैं. हमारा देश भी अभी नंबर ऑफ पेटेंट्स बीइंग फाइल्ड, जो आईपीस हम लोग हमारे यहाँ पर फाइल हो रहे हैं, बहुत नंबर इज वेरी वेरी लो कंपेयर टू मेनी अदर कंट्रीज. राइट सर. सो डेफिनेटली आई थिंक इसमें अभी ये सेशन तो ठीक है, आपने बहुत सारी चीजें एक साथ कवर कर दी हैं, बट देन आई वुड मेरी एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर आप फिजिकली कभी आ पाएंगे तो वी कैन हैव अ सेशन इन पर्सन विद यू. तो उसमें ज़्यादातर हम कवर करेंगे हमारे जो फैकल्टी हैं और स्टूडेंट हैं जो स्टार्टअप कर रहे हैं, सो दैट दे कैन कम एंड सिट एट वन प्लेस. वहाँ पर ये लोग अपने पर्टिकुलर क्वेश्चंस भी आपसे रख सकते हैं. राइट सर. सो दैट विल एक्चुअली कनेक्ट ऑल ऑफ अस विद यू मोर. राइट. that is my thinking. So next time I think मैं सोच रहा हूँ कि आपके पास जब भी टाइम होगा, we can plan your session, not a session, rather it's a Q&A. तो Q&A रखने से ज़्यादा आंसर्स मिलेंगे and questions will be asked more. Right, sir. Right. So I think अगर किसी का question हो तो we can open up. Sir, there is a one question from the Rohit Mishra. What is the definition, meaning, guidelines for being a person skilled in the art? Okay, so skilled in the art. Okay,
तो बेसिकली स्किल्ड इन द आर्ट होते हैं आर्टिसंस, राइट? आर्टिसंस जो एक स्किल्ड इन द आर्ट मतलब किसी में कॉम्पिटेंट हो। फॉर इंस्टेंस मैकेनिकल कोई इंजीनियर है, तो अगर वो उस किसी काम में, हिंदी में कहें तो वेरी साउंड है वो, तो उसको स्किल्ड इन द आर्ट बोलेंगे। बट स्किल्ड इन द आर्ट इन टर्म्स ऑफ पेटेंट और आईपी का मतलब ये होता है कि मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो मेरे जो संग में जो सेम फील्ड ऑफ इनोवेशन में काम कर रहे हैं, दैट वुड कम अंडर द कैटेगरी ऑफ स्किल्ड इन द आर्ट अंडर द इंडियन आईपी लॉ। So this is what the meaning of skill is. Okay. Yeah. Okay. Anybody has any question? Because एक presentation में एक बहुत clearly एक mention था कि how owning an IP and filing an IPR and having an IP will help raise funds. So Right. investors कैसे convince होते हैं, you know, and they can easily give funding. Right. So we can take one more question. It's from Akash Srivastav. Yes, Akash, go ahead. Okay. So Akash sir, ये unmute नहीं कर पा रहे हैं आकाश, तो एक second. आकाश आकाश श्रीवास्तव. Yeah, hello, Pratik sir. Thank you Yes, so sir. much. It was very insightful, to be very honest. I have a couple of questions. So I've just started off my own company. Okay. So you mentioned a clause that the patent is valid for 20 years. Yeah. So after 20 years, so the patent gets matlab, what happens to the patent then? वो After 20 years. पेटेंट एक्सपायर हो जाता है एंड एनीवन बेसिकली यू कैन नॉट आप मतलब वो इन्वेंशन कोई भी इंसान कर सकता है यूज उसको। So there will be no right for you, right? So this Okay. monopolized this basically term is only for 20 years. 20 साल के बाद आप उसमें कोई क्लेम नहीं कर सकते हो, और जो संघ में जो और लोग हैं वो भी नहीं कर सकते। Everyone can use the image. So it's like, would it be equivalent to saying that the technology gets open sourced? Yes, कि exactly. patent Right. मतलब- Right. Okay. Right. Okay. Okay. And one more thing, if I want to sell a product or something, Yeah. so if I want to commercialize it, so is it utmost necessary that I should get that patented? It is not mandatory, but though advisable. Because Yeah, मतलब I saw the angel हाँ investor thing. Yeah. हाँ मतलब Makes sense. बेसिकली क्या है कि कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, बट नॉर्मली क्या होता है कि जो किसी इन्वेस्टर के पास जाते हो ना, Mm-hmm. वो जब इन्वेस्टमेंट करता है तो वी वांट सम सॉर्ट ऑफ श्योरिटी वेदर यू हैव सम सॉर्ट ऑफ राइट और नॉट। अगर आप कोई इन्वेंशन कोई आपने कोई इन्वेंट किया है, प्रोडक्ट किया है विच यू आर पिचिंग इन द मार्केट, उसकी कोई लीगल प्रोटेक्शन है कि नहीं, तो वो एक Okay. मतलब एक ये होता है कि आपकी जो प्रोफाइल है इट विल ऐड अ वैल्यू टू इट, ऑल्दो Okay. नॉट मैंडेटरी बट यस इट इज एडवाइजेबल। Okay. Yeah. Got it. Acha, one more thing about if unknowingly I made something that is already patented and I commercialize it. So matlab, what will be the scenarios? Well, how will it be taken down? I mean, if it's like if I made a product and it already exists and someone has filed a patent for it, Okay. so how will it be taken down? Matlab, will I receive a Uh, notice or something like this? अभी तक कुछ आया है क्या? ना अभी तो कुछ नहीं आया. मतलब it's ठीक like है I'm ना? in the field of automation वगैरह. So automation is like quite of open text sort of thing. नहीं देखिए सर, जिसने पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किया है क्या उसका पेटेंट ऑलरेडी अच्छा ग्रांटेड हाँ, है? one more thing. Yeah. अच्छा उस पर डिपेंड करेगा. ओके. तो पेटेंट जिसने फाइल मेरे किया पास है उसको ग्रांट हो गया है? नहीं, इट्स लाइक अ जनरल डाउट. मतलब अभी कुछ ऐसा इवेंट वैसा हुआ नहीं है. नहीं मतलब वो ऐसा तो फिलहाल अभी कुछ नहीं है। इन केस अगर कुछ आता है देन इट विल बी डेल्ट सेपरेटली, so you should not basically worry about it right now.
So Okay. Prateek sir, Yes, sir. as I understand कि आपने भी जब presentation में बताया था बहुत clearly, so you should have something invent. I mean, you should be inventing something. तो आपको ये fair idea होता है कि you have something that could be patented. So Yes. and you shared the resources from where you can find out. Yeah. One can find out Yeah. कि इस तरह का कुछ पेटेंट फाइल है या नहीं है. Yeah. बाकी फिर हेल्प तो आपसे मिल ही जाएगी अगर इफ यू आर वी आर नॉट हाँ. कॉन्फिडेंट. So basically चाहे कोई पेटेंट अटॉर्नी हो, वेदर द कंट्रोलर हो, चाहे कोई भी हो, नो वन कैन गिव यू द एग्जैक्ट कि ये पेटेंटेबल है कि नहीं. ऑल्दो इट विल गिव यू इनसाइट कि हाँ इस तरीके की चीजें ऑलरेडी हैं, बट कोई पर्टिकुलर कोई पेटेंट ऐसा निकाल के नहीं आ सकता है, क्योंकि सर्च कभी कंप्लीट नहीं होती सर्च, राइट. मैं सर्च करूंगा तो और टाइप के रिजल्ट्स आएंगे, आप सर्च करेंगे तो किसी और टाइप के रिजल्ट्स आएंगे. बट यस, आप किसी पेटेंट अटॉर्नी के थ्रू करवाते हैं तो इट विल गिव यू अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि हाँ क्या क्या अभी ऑलरेडी नोन है और हम किस वे में आगे हमको चलना चाहिए. राइट सर. Right. Got it. Yeah. Got it. Yes. So I have a last question. Yeah, please go ahead. In the PPT, in the 9th slide, slide number 9, there was something regarding agriculture. You cannot patent a method of agriculture. Yeah. So it's the method, or मतलब if I have like मतलब अगर मेरे पास एक device बनाना है, नहीं, that is allowed. Method of agriculture is not allowed. that would help agriculture. तो वो उसको patent कर सकते हैं. Yeah. हाँ, method of agriculture allowed नहीं. Okay. And one more last request. Can you share this PPT to Pawan sir so I can get this? मतलब it's very useful. All right, sir. Okay, I will. Okay. Yeah, and I'll ping you on WhatsApp. I have a number. I'll ping you on WhatsApp. Thank you. Thank you so much. Okay, Akash. I think you made the most out of this session. All right. So all please switch on your camera. Sir, Prateek sir, if you can also switch on your camera. And we can just have a group photo on Zoom. Okay. I request everyone to open your camera, please. So I have shared my PPT in the chat box. If you want, you can take it from there and कर सकते हैं. In case if you have some questions, you can anytime call me and email me. So that's not. You can just thank you. For sure. And of course, I have to have one more session with you in person in ITM. Yes, sir. Thank you very much. You can basically instruct me when to come. Not at all. I'll request you. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you, everyone. Thank you, Akant, sir. Thanks a lot.